गर्जन धन्यवाद देवांशी ग्रुप। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जानवी को अपनी कविता लेकर मंच पर आमंत्रित करता हूँ, जिसका शीर्षक है बाबा साहेब हमारे भाग्य विधाता। तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें जानवी का। और अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है बाबा साहब हमारे भाग्य विधाता। भारत के संविधान निर्माता, दलित शोषितों के भाग्य विधाता, लोगों को दिया समानता का अधिकार, बनाई जनता की सरकार, न्याय और जातिवाद से लिया लोहा, लोगों के मन को मोहा, महिलाओं और दलितों को दिए अधिकार, सबके सपनों को किया साकार, दलितों के अधिकारों के लिए किया संघर्ष, राष्ट्र निर्माण के लिए किया कार्य, हर चुनौती को किया स्वीकार, देश हित के लिए सहे धर्ममान। इसलिए आओ करें बाबा साहब का सम्मान। धन्यवाद।
Thank you, Janvi. Now, to rejuvenate everyone, I would like to invite Ruvika and group with their dance on Jai Jai Bhim. थैंक यू ध्रुविका एंड ध्रुव। तो अब मैं अपनी मातृभाषा में ज्ञानवर्धन के हेतु कृतिका को गुजराती में भाषण देकर आमंत्रित करता ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો દેશને નામ અંતિમ સંદેશ મારા સમાજના લોકોને કહેજો મેં અનેક કષ્ટો વેઠી જિંદગીભર દુઃખ ભોગવી મારા વિરોધીઓ સામે લડત આપી જે કાંઈ મળ્યું છે મોટી મુશ્કેલીથી આ કાફલો જ્યાં આજે દેખાય છે ત્યાં હું લાગુ છું માર્ગમાં નવેસરથી અડચણો આવી પડે તોય હવે આ કાફલો પાછળ જવો જોઈએ નહીં મારા સાથીઓ આ કાફલાને આગળ લઈ જવા અસમર્થ હોય તો તેઓએ આ કાફલાને ત્યાં જ રોકી દેવો જોઈએ પરંતુ આ કાફલો ગમે તે સ્થિતિમાં
આગેવાન પ્રગટ ધારાશાસ્ત્રી, સમાજ સુધારક અને બંધારણીય કાયદાના નિષ્ણાત એવા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને મારા कोटि कोटि वंदन। विराट जमीन पर बाबा भीम ने गुलाबों का बाग खिला दिया, सदियों से बिछड़े मानव को ज्ञान के द्वार पर ला दिया। अरे इज्जत की रोटी तो क्या, पीने को दो घुट पानी तक नहीं मिलता था। अरे इज्जत की रोटी तो क्या, पीने को दो घुट पानी तक नहीं मिलता था। उन सब शोषितों को प्यारे भीम ने शेरनी का दूध पिला दिया। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ દાપોલીમાં મેળવ્યું। તેઓ મહાર જાતિના હોવાના કારણે તેમની સાથે સામાજિક અને આર્થિક રીતે ભેદભાવ કરવામાં આવ્યો હતો। દલિત હોવાને કારણે તેમને શાળાના પટ્ટાવાળા હાથ પર પાણી રેડીને પાણી દેતા હતા। જો શાળાના પટ્ટાવાળા વેકેશનમાં હોય તો બાળકોને આખો દિવસ પાણી પણ નહોતું મળતું। આ બધાને સહન કરવા છતાં બાબા સાહેબે અભ્યાસ છોડ્યો નહીં। તેમણે શિક્ષણ ચાલુ રાખ્યું। તેમણે બોમ્બે યુનિવર્સિટીમાં 1912માં ડિગ્રીની પરીક્ષા પાસ કરી। સંસ્કૃત ભાષાનું શીખવાનો વિરોધ હોવાને કારણે તેઓ ફારસીમાં પાસ થયા। અને એની પ્રેરણા મેળવવા લાયક વાત તો એ છે કે જે વિદ્યાર્થીને જાતિ ભેદભાવના કારણે સંસ્કૃત ભાષાનું શિક્ષણ આપવામાં નહોતું આવ્યું તે વિદ્યાર્થી ભવિષ્યમાં 9 ભાષાઓનો જાણકાર અને તેને 21 વર્ષની નાની વયે બધા જ ધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો હતો। એમણે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કે જીવનમાં કોઈ કામ એવું નથી જે માનવી સંભવ ન બનાવી શકે। માત્ર જરૂર છે તો આત્મવિશ્વાસ અને ધૈર્ય। શિવાજી વિશ્વવિદ્યાલયના ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર વિકાસ કેન્દ્ર દ્વારા તેમના શબ્દ ભંડોળ અને અંગ્રેજી અંગે એક સર્વે કરાયો અને તેના સતત 2 વર્ષના સંશોધન બાદ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે વિવિધ લેખો, પુસ્તકો વગેરેમાં વાપરેલા શબ્દોની સંખ્યા કુલ 8500 જેટલી હતી। તેમની ડિક્શનરીમાં પણ કુલ 8500 શબ્દો મેળવવામાં આવ્યા। સામાન્ય રીતે કોઈ લેખકના શબ્દ ભંડોળમાં 1000 શબ્દો હોય તો તેને વિચારક કહેવાય, પરંતુ અહીં તો તેના કરતાં અનેક ગણી વધુ ક્ષમતા હતી। હવે વાત કરીએ તેમના વિદેશી શિક્ષણની તો તેઓ 2013માં અમેરિકા વર્ષ 1915માં અમેરિકા ગયા। વર્ષ 2015માં તેમણે કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાંથી સમાજશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ, માનવશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્રમાં તેમની માસ્ટર ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી। ત્યારબાદ તેમણે ફેલોશિપ સમાપ્ત કરી અને ભારત પાછા ફર્યા। ભારત પાછા ફર્યા બાદ તેમણે શિષ્યવૃત્તિના નિયમો હેઠળ બરોડા ખાતે રાજાના દરબારમાં લશ્કરી વિભાગમાં નાણાકીય જવાબદારી સ્વીકારી। આ કામ કરવું તેમના માટે સરળ નહોતું, કારણ કે જાતિ ભેદભાવના કારણે તેમને શહેરમાં કોઈ ભાડે મકાન આપવા તૈયાર નહોતું। ત્યારબાદ તેમણે નોકરી છોડી દીધી અને ખાનગી શિક્ષક અને એકાઉન્ટન્ટ તરીકેની નોકરી લીધી। અહીં તેમણે કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસ પણ શરૂ કર્યો, પરંતુ અહીં પણ તેમને અસંતુષ્ટતાના વલણે પહોંચ્યા। તેમની આ પરિસ્થિતિ જાણીને મને કવિ નિલેશ નાથાણી આ પંક્તિ યાદ આવી રહી છે। આંસુની વણઝાર બોલો તો ક્યાં જો, સ્વ તરફ ધિક્કાર બોલો તો ક્યાં જો। આંસુની વણઝાર બોલો ક્યાં જો, સ્વ તરફ ધિક્કાર બોલો ક્યાં જો। આખરે તેઓએ મુંબઈ પાછા ફરી સિનેમા કોલેજમાં ઇકોનોમિક્સમાં પોલિટિકલ ઇકોનોમીના પ્રોફેસર બન્યા। તેમણે આગળના શિક્ષણ માટે પૈસા બચાવી 1920માં પોતાનું આગળનું શિક્ષણ ચાલુ રાખવા ઇંગ્લેન્ડ ગયા। ત્યાં તેમણે અર્થશાસ્ત્રમાં ડીએસસીની ડિગ્રી મેળવી। ત્યારબાદ તેઓ કાયદાનો અભ્યાસ પૂરો કરી બ્રિટિશ બારમાં બેરિસ્ટર તરીકે કામ કર્યું અને ભારત પાછા ફર્યા। ત્યારબાદ તેમણે જાતિના ભેદભાવ સામે લડવાનું નક્કી કર્યું, જેના કારણે તેમને ઘણી વખત અપમાન અને અનાદરનો સામનો કરવો પડ્યો। તેમણે જોયું કે કેવી રીતે અસ્પૃશ્યતા અને જાતિ ભેદભાવ સર્વત્ર ફેલાઈ રહ્યા છે। આંબેડકરે આ બધાને દેશની બહાર ભગાડવા પોતાનું કર્તવ્ય માની તેના સામે કૂચ કરી। 19
26 નવેમ્બર 1949ના રોજ લગભગ 2 વર્ષ 11 મહિના અને 7 દિવસના અથાગ પરિશ્રમથી સમતા, બંધુત્વ, માનવતા પર આધારિત બંધારણ તૈયાર કર્યું અને તાત્કાલિક રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને દેશના તમામ નાગરિકોને સોંપવાની રાષ્ટ્રીય એકતા, અખંડિતતા અને વ્યક્તિની સ્વાભિમાની જીવનશૈલી ભારતીય સંસ્કૃતિનો મહિમા કર્યો, જેમાં મુખ્ય વિષયો હતા ભારતના બંધારણે ભારતના તમામ નાગરિકોને ધર્મની સ્વતંત્રતાનો અધિકાર આપે છે, અસ્પૃશ્યતાને જડમૂળથી દૂર કરવી, સશક્ત મહિલાઓ, સમાજના બધા વર્ગો વચ્ચે વધતી જતી ખાઈને દૂર કરવી. ડોક્ટર બાબા સાહેબે આમ મહિલાઓની સ્થિતિ સુધારવા માટે સતત પ્રયાસ કર્યા હતા. 1951માં તેમણે હિન્દુ કોડ ઓફ વિમેન્સ એમ્પાવરમેન્ટ બિલ પસાર કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે મંજૂર ન થતા તેમણે કાયદા મંત્રી તરીકે રાજીનામું આપ્યું. ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર પરની બંધારણ ઘડતરની ચળવળનો મુખ્ય હેતુ જાતિભેદ અને અસ્પૃશ્યતાને જડમૂળથી નાબૂદ કરવાનો અને તમામને સમાન અધિકારો આપવા સાથે અસ્પૃશ્યતા મુક્ત સમાજનું નિર્માણ કરી સમાજમાં ક્રાંતિ ફેલાવવાનો હતો. વર્ષ 1954-55 દરમિયાન તેમની નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે ડોક્ટર આંબેડકર ખૂબ જ ચિંતિત હતા. ડાયાબિટીસ, અસ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ વગેરે જેવી ઘણી બીમારીઓને કારણે તેમની તબિયત બગડી અને લાંબી માંદગીને કારણે 6 ડિસેમ્બર 1956ના રોજ દિલ્હીમાં તેમના ઘરે તેમને અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમને બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો હોવાથી તેમને તે ધર્મની જેમ અંતિમ સંસ્કાર આપવામાં આવ્યા. તેમની અંતિમ યાત્રામાં ઘણા લોકોની ભીડ ઉમટી પડી. ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરનું સ્મારક દિલ્હીમાં તેમના 26 અલીપોર રોડ પર સ્થિત ઘરે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લે મહાન વિભૂતિ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવન સાથે જોડાયેલ કેટલાક ખાસ તથ્યો હું આપને જણાવવા માંગીશ. 1990માં તેમની મરણોત્તર ભારતનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ભારત રત્ન એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમના માનમાં ઘણી જાહેર સંસ્થાઓનું નામ તેમના નામ પર રાખવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય સંસદ ભવનમાં આંબેડકરનું ભવ્ય અધિકૃત ચિત્ર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય તિરંગામાં અશોક ચક્ર મૂકવાનું શ્રેય પણ આંબેડકરને જાય છે. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે મહિલા મજૂર માટે માતૃત્વ લાભ, મહિલા મજૂર કલ્યાણ અને શ્રમ સંરક્ષણ અધિનિયમ જેવા કાયદાઓ બનાવ્યા હતા. તેમની આવી જ અદ્વિતીય બુદ્ધિમત્તાને કારણે જ કહેવાય છે કે बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाश करते हैं. बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्गोष से ये आगाह करते हैं. जय भीम, जय हिंद, जय भारत. आभार. हेलो, धन्यवाद कृतिका. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संध्या और आर्ना को अपने राजस्थानी लोकगीत पर अपना नृत्य लेकर मंच पर आमंत्रित करता हूँ.
Arna and Sandhya. Now I would like to invite Jigar Rajput with his speech on Dr. Bhimrao Ambedkar. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, Senior Most Teacher Goel Sir, Bhaguna Sir, all my teachers and my dear friend. Good morning. Today I am Jigar Rajput present here with a speech on Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, better known as Baba Saheb Ambedkar. He was born on April 14th of 1891 and his birthday is commemorated as Ambedkar Jayanti every year. He was a politician, economist, lawyer and a social reformer. He was expert in 64 areas and a fluent 11 language speaker. He was the inspiration of Dalit Buddhism movement. He was the 14th and the final child of Ramji Maloji Sakpal and Bhimabai Sakpal, a Marathi couple born in Mahar caste who were considered as untouchables. He was married at the age 15 to Ramabai, who was 9 years old in 906. By 1912, he earned a degree in political science and economics. He got Baroda State Scholarship for postgraduate in Columbia University when he was 22. He started Temple Entry movement in 1927 to let lower caste people to enter temples. He also started Neo-Buddhism movement, in which over 5,000 Dalits who once considered untouchables are converted to Navayan Buddhism. People often say that powerful people come from powerful places, but it is wrong. Powerful people makes the place powerful. It is our honor that such great personality was in our country. He was also awarded Bharat Ratna in April of 1990. At last, I thank NK sir to give me this opportunity to speak about this legend. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat. धन्यवाद जिगर राजपूत। कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में मैं श्रेयसी एंड ग्रुप को अपने नृत्य क्रांति सूर्य तू शिवकार तू भारत का के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। क्रांती सूर्य तू शिल्पकार तू भारताचा बोधिसत्व मुख नायका मोडल्या रूढी त्या परंपरा दिव्यतेच्या तुझ सकल न्यायदायका क्रांती सूर्य तू शिल्पकार तू भारताचा बोधिसत्व मुख नायका मोडल्या रूढी त्या परंपरा जीवन तुझे अमानस प्रेरणा नाही दिशा तुझीच गर्जना भीमराया स्पर्शिले तू ओंजळीने खुले केले पाणी चौदार तळाचे हक्क देऊन माणसाचे केले सोने पीडितांच्या जीवनाचे शिवा संघटित आणि संघर्ष करा शिवा संघटित आणि संघर्ष करा मार्ग प्रगतीत नाविला भीमराया
धन्यवाद श्रेयसी एंड ग्रुप। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि वे आर्ट इंटीग्रेशन वर्कशॉप 2023-24 में पुणे रीजन में फर्स्ट और नेशनल में फर्स्ट आने वाले प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर उनको प्रोत्साहित करें। साथ ही मैं वीपी सर, एसएमटी सीनियर मोस्ट टीचर गोयल सर, श्रीमती पवार मैम और कुमारी विनीता मैम भी को भी आमंत्रित करता हूँ। पीर चावड़ा मंच पर आमंत्रित हो। उसके साथ रिद्धि बारिया, रूबी जायसवाल, श्रेया वसावा, अल्पा, ध्याना और रश्मि बारिया मंच पर आमंत्रित है। इनमें से 4 रिद्धि, ध्याना और रूबी ने नेशनल प्राप्त किया है।
इनको नेशनल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आखिर में मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे आए और अपने आशीष वचन से हमें लाभान्वित करें। शिक्षक साथियों, कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों, देखने को हमें मिलती है जो प्रकृतिवादी हैं, जो प्रकृति में विश्वास करते हैं, मनुष्यता में विश्वास करते हैं, वो किसी धर्म विशेष नहीं करते। अगर हमें वाकई एक ऐसे समाज की रचना करना है जिनको बाबा साहब ने अपने किताबों में, अपने लेखन में, अपने संपादन में, अपने न्यूज़पेपर में बताया, अगर वाकई हम उनकी गहराई में जाते हैं तो उन्होंने अपने उन दृढ़ विचारों को, उन दृढ़ संकल्पों को, उन दृढ़ इरादों को अकेले होने के बावजूद भी प्रकट किया। जहां हम इतिहास में देखते हैं कि वो महात्मा गांधी से भी अपने मतभेद रखते थे और उन्होंने जब देखा और उन्होंने कहा भी कि जब अस्पृश्यों के हितों की बात और राष्ट्र के हितों की बात आएगी तो मैं अस्पृश्यों के हितों को ज्यादा तरजीह दूंगा बजाय एक राष्ट्र के हितों को। तो उनका ये कथन कोई ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे, लेकिन उनका ये मानना था कि जब तक हम इस वर्ग विशेष के लिए ऊपर काम नहीं कर पाते, इनको अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के लिए नहीं कुछ कर पाते, तो हमारा राष्ट्र का सपना बेकार है, हमारी स्वतंत्रता बेकार है, वो व्यर्थ है। इसके बुद्ध दर्शन को अपनाते हुए उन्होंने भारतीय समाज के उन मजलूमों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए न सिर्फ भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था की, बल्कि 1956 में जैसे केंद्रीय मंत्री जो कानून मंत्री थे उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं कि हिंदू कोड बिल क्या है, कई बार इस मंच के माध्यम से आपको बताया गया। ये हिंदू संहिता जो है इसमें वो चाहते थे पुनर्विवाह, पुनः विधवाओं का पुनर्विवाह तथा पुत्र लेना, उत्तराधिकार का नियम जो महिलाओं को भी मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि महिलाओं को ये सब अधिकार प्राप्त हो। इसीलिए आज आप सोशल मीडिया पे इस देश के महान शिक्षक डॉक्टर दिव्यकृति विकास जी को जब सुनते हैं तो एक बात कहते हैं कि इस देश की महिलाओं को अगर सबसे पहले सवेरे उठकर अगर किसी को याद करना है तो बाबा साहेब को याद करना। आज उन्हीं की वजह से वो पुरुष प्रधान
समाज में उनके कंधे से कंधा मिलाकर आज बैठे हुए। ये अधिकार दिलाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, जो सालों साल तक याद की जाएगी। लेकिन हम उनके इन अधिकार दिलाने वाली बात को कभी याद नहीं करते। ये हमारी विडंबना है। ये हमारी विडंबना है कि जिसने सती प्रथा का उन्मूलन किया उसको हम याद नहीं करते। हम उन कभी भी समाज सुधारकों को याद नहीं करना चाहते। हम आज भी उन 30 त्योहारों में लगे हुए हैं जिनसे न सिर्फ हमारा आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि कोई हमें इतनी बड़ी खुशी भी हासिल नहीं होती। यही कारण है कि बाबा साहब हमेशा शिक्षा शिक्षा का रट लगाते थे। उन्होंने कहा भी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज के इस युग में हमें सोचना पड़ेगा कौन सी शिक्षा। आज बहुत सारे शिक्षित लोग भी पाखंड अंधविश्वास के शिकार हैं। अपने घरों में ऐसी कुरीतियों को अपनाए हुए हैं जो उनको खुद को तर्क करके अगर वो सोचेंगे विचारेंगे तो उनको हंसी आएगी, लेकिन वो उसको त्यागना नहीं चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में वो एक प्रोग्रामिंग कर दी गई कि इसे उनको मानना ही। वो वैज्ञानिक सोच के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर ऐसा ही होता तो जितने भी आश्रम आधारित कानून बने हुए हैं वो बाबा साहब की देन है। हमारे सबसे पहले वो स्पीच देने वाले बच्चा है, क्या नाम था उसने बताया कि आजादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि आजादी के पहले बाबा साहब के साथ भेदभाव, आजादी के बाद उनकी मृत्यु के बाद भी उनके साथ भेदभाव किया गया। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी उनके साथ भेदभाव किया। नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि वाकई दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हो, इसीलिए उनको मुंबई लाया गया। क्यों? क्योंकि उनकी समाधियों की रौनक कम हो जाएगी नेहरू गांधी परिवार में। गांधी परिवार ने अपने नाम पे रत्न बटोर लिए, भारत रत्न। उनको भारत रत्न मिला 1990 में जाकर, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तब। तो ये भेदभाव न सिर्फ आजादी के पहले लेकिन आजादी के बाद भी उनके व्यक्तित्व के साथ देखने को मिलता है। लेकिन कहते हैं कि जिस बांध को जितना बांधने की कोशिश करता है वो कभी ना कभी फूट ही जाता है। आज उनके फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं? उनके फॉलोअर्स बढ़ ही इसलिए रहे हैं कि आज वाकई तार्किक शिक्षा ने एक नया मुकाम हासिल करना शुरू किया है। हम कहीं न कहीं जो पढ़े लिखे सभ्य समाज से आते हैं उनको ये मानने के लिए विवश होना पड़ेगा कि मनुष्यता ही आखिरकार हमारे विकास का अंतिम और चरम लक्ष्य होगा। तो बाबा साहब अंबेडकर, जिनको हम एक महान व्यक्तित्व के रूप में आज याद कर रहे हैं, उनका हमेशा से मानना था कि मुझे पूजना मत, मेरी आराधना मत करना। हम क्या कर रहे हैं? आज भी उनको विशेष रूप से मानने वाले जय भीम का नारा लगाते रहते, रटते रहते। जय भीम क्या है उसका वो अर्थ भी नहीं जानते। जय भीम का मतलब है एक मजबूत मानसिक मर्दाना शक्ति वाला व्यक्तित्व, जो महाभारत में भी भीम का एक पात्र के रूप में हमको देखने को मिलता है। वो मानसिक शक्ति, वो दृढ़ता कि मैं भले अकेला चलूंगा, मेरे साथ जिसको जुड़ना है तो जुड़े, नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं, कारवां अंततः जुड़ेगा। हमने वाकई महान व्यक्तियों को पूछ, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो नानक हो, इनको वाकई हमने इनकी पूजा अर्चना करके इनके व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया। ये जिस विचारों को फैलाना चाहते थे, उन विचारों को हम फैलाने के बजाय इनके व्यक्तित्व को पूजने में हम लग गए। और आज भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रोग्रामिंग है हमारी पूजने वाली, वो जाती नहीं। जबकि हमको क्या होना चाहिए? ये जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी विचारधारा को कैसे फैलाया जाए, वो काम करना है हमें इस क्षेत्र में। आज अगर हम सिर्फ
बाबा साहब की ये जन्म जयंती मनाते हैं या उनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, तो हम सिर्फ अपने कर्तव्य की इतनी कर लेते हैं कि हमने बाबा साहब को याद कर लिया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वाकई अगर हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के पक्षधर हैं और हम आधुनिक बुद्ध दर्शन की में विश्वास करते हैं, मैं प्राचीन बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आधुनिक बुद्धिज्म वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, उसको अगर हम लेकर चलते हैं, उनकी विचारधारा पर चलते हैं, तो आज के दिन हम ये जन्म जयंती मना रहे हैं वो वाकई साकार हो। अन्यथा मात्र उनके व्यक्तित्व के बारे में एक दिन याद करना, बढ़ चढ़ के उनके बारे में बताना या उनकी पूजा पाठ कर लेना, उनको माला पहना देना, अगरबत्ती या मोमबत्ती लगा देना या दिया जला देना, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। ये सेम वैसा ही हम कर्म कांड कर रहे हैं जिसके लिए वे हमेशा मना किया करते थे। एक दिन भले हम उनके लिए कर लें, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो अम्बेडकरी विचारधारा, अम्बेडकर का मतलब ही है सबको समान रूप से देखना, ये उन्होंने कहा। ये अगर हम सब कर सकें, हम ये कर सकें कि हमारे देश में लिंग भेद न हो। आज भी देखिए कई जगहों पर हमारी बालिकाओं को पढ़ने से रोका जाता है। आज भी कई जगह वंचित वर्ग से आने वाले, निचले समाज से आने वाले लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हम शिक्षित हैं, हम जानते हैं, हमारे पास एक वैज्ञानिक सोच भी है। हम ये भी जानते हैं कि किसी के भी, जब हम बीमार होते हैं तो हम किसी का भी ब्लड ले लेते हैं, वहां पर हम कभी ये नहीं सोचते कि ये किसी वंचित वर्ग से या निचले तबके का व्यक्ति है। हम जानते हैं क्योंकि प्रकृति ने रक्त तो सबका समान बनाया है, 4 ग्रुप में बटा हुआ है। तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो सफाई का काम कर रहा है, जो हमारे लिए जूता बना रहा है, जो अन्य ऐसे काम कर रहा है जो वाकई हमारे दैनिक जीवन की बहुत जरूरत के अंदर आता है, उसको हम हेय दृष्टि से देखें, तो निश्चित बात है कि हम कहीं न कहीं मनुष्यता में विश्वास नहीं करते, उसकी गरिमा में विश्वास नहीं करते। मनुष्यता की गरिमा में विश्वास करने के लिए जरूरी है कि बाबा साहब की विचारधारा को, ज्योतिबा फुले की विचारधारा को हम इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि वाकई मनुष्य मनुष्य रहे, चाहे वो किसी भी धर्म की उपासना करे, लेकिन कम से कम उनके बीच में आपस में बंधुत्व हो। हमारे देश में तो कई प्रकार के धर्म हैं, लेकिन आज भी हम अपने धर्म को श्रेष्ठतर बनाकर किसी अन्य धर्म को हम निकृष्ट साबित करने की कोशिश में लगे हुए। हर हिंदू ये चाहता है कि सब हिंदू हो जाए, एक मुस्लिम चाहता है सब मुस्लिम हो जाए, एक ईसाई चाहता है सब ईसाई हो जाए। क्या ये हो पाएगा कभी? यही कारण है कि जितने भी अवतार लिए थे उन्होंने सबने कहा कि मैं मुक्ति दूंगा। कभी ईसा मसीह ने भी कहा सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। कौन किसको मुक्ति दे सकता है? जब हम विज्ञान पढ़ते हैं और क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी जाने कितनी गैलेक्सी बनी हुई, गैलेक्सी के पार गैलेक्सी, ये अनंत है ये सृष्टि, इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। तो कहां से आ गई अवतार, पीर पंडे वगैरह, ये हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति ही महान है। आपको किसी धार्मिक पुस्तक में ये देखने को या पढ़ने को मिलेगा कि बृहस्पति जैसे ग्रह पर 300 साल से तूफान चल रहा है? कैसे खोजा हमने अपने मस्तिष्क से, हमने अपने अन्वेषण से, हमने अपनी वैज्ञानिक विचारधारा से इन सारी चीजों को खोजा। यही कारण है कि आप कभी भी देखिए जब प्रकृति की गोद में जाते हैं तो कोई एक पेड़ दूसरे पेड़ को नष्ट नहीं करता। जिसमें जितनी ताकत है, जिस जड़ में जितनी ताकत है वो पानी ले लेता है, जिस पेड़ में जितनी ताकत है वो पानी ले लेता है। ये प्रकृति से हमको सीखना होगा। यही कारण है कि प्रकृति को महान माना जाकर चार्वाक दर्शन में कहा गया है कि प्रकृति ही सब कुछ है, वही हमारा पालन पोषण करती है और प्रकृति सबको समान रूप से देखती है। ये संभाव जो है यही मनुष्यता की गरिमा है। ये अगर हम कर सकें तो आज के दिन जो 14 अप्रैल को
हम बाबा साहब की ये जन्म जयंती मना रहे हैं, ये साकार होगा। आज हमारे इस विद्यालय में पढ़ रहे प्रत्येक बालक बालिका को संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब नानक चंद रत्थों को लिखे गए उनके बहुत सारे पत्र हैं, उनको वो लाइब्रेरी में पढ़ें, उनसे कुछ सीखें। उन्होंने बहुत पीड़ित होकर कई जगह अपनी बात भी कही कि मैंने जिस वर्ग के लिए काम किया आज वही वर्ग सबसे ज्यादा पाखंड कर रहा है, जिनको उठाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। वाकई अगर हम देखें तो अगर हैदराबाद के नवाब से अगर वो उस धर्म को स्वीकार कर लेते तो आज उनकी पीढ़ियां शायद अंबानी अडानी की लाइन में बैठी हुई होती, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि उनका जो एक कोटेशन है, ये मनुष्य जीवन लंबा ना हो लेकिन ये महान जरूर। हम समाज को देकर क्या जानते हैं? जो फर्स्ट स्पीच आपने सुनी उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर वगैरह हम खाने के लिए जीते हैं और हम समाज के किसी वर्ग के लिए काम नहीं करते, अपनी मनुष्यता के लिए काम नहीं करते, तो आप भी ठीक वैसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह एक दिन मर जाएंगे। कुछ दिन हमें लोग याद करेंगे, तस्वीरें हमारी दीवार पर लगाएंगे, लेकिन भूल जाएंगे। तो हम अपने आसपास, अपने गांव, अपने शहर, जहां पर भी है, हम इस विचारधारा को फैलाकर हम चाहें कि जो वंचित हैं, जो अंतिम पायदान में खड़े हुए लोग हैं, वे भी देश की मुख्य धारा में आ गए। हमारे बच्चे ही कम से कम, प्रत्येक बच्चा अगर ये संकल्प ले कि मैं कक्षा 5वीं की नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरवाऊंगा कम से कम 5 बच्चों के, ये बाबा साहब का काम। एक ऐसे बच्चे को हम प्लेटफॉर्म दिला देंगे जो हो सकता है जीवन में कुछ नहीं कर पाता, तो कम से कम यहाँ आकर वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर ले, वो अपना कहीं न कहीं जीविकोपार्जन की स्थिति में आ जाए या एक बड़ा इंसान बन जाए। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी हम बाबा साहब की मिशन को बढ़ा सकते हैं। हम जहां भी रहें, हम ये कोशिश करें कि अगर हम सक्षम हैं तो हम उन अक्षम लोगों को भी ऊपर लाने का प्रयास करें, उनको भी आगे बढ़ाएं। तभी ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जहां उन्होंने नारा दिया था और कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो तभी सफल हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सबको बाबा साहब की जन्म जयंती बहुत बहुत मुबारक हो, और साथ ही साथ उनके दर्शन को पढ़िए, उनके व्यक्तित्व के बारे में और पढ़िए। अभी तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर बहुत ढेर सारा साहित्य है, सिर्फ क्लिक करने भर की देर है। आप जितना उनके बारे में ज्ञान हासिल करके मनुष्यता के लिए और समाज, समतामूलक समाज के लिए कार्य कर सकें, तो ये उनके लिए एक सच्ची आदरांजलि और श्रद्धांजलि हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इन कुछ शब्दों के द्वारा आपको जो प्रेरणा दी है, उसको आप अपने जीवन में जरूर ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू बहुत अच्छा। धन्यवाद।